हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉर्पोरेट क्रिकेटर। एंड मैंने सोचा आज रील्स की जगह विल ट्राई एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो। एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज़ my bats. I generally end up playing as an opener for my team, and one thing that I'm really passionate about is using different cricket bats and in general मेरे को बैट्स का बहुत शौक रहा है। तो मुझे लगता है पिछले 3 साल में आई हैव साइकिल्ड थ्रू six of them. Yeah, I think six, and I've used different brands, Grey Nichols. Currently I have, you can see in the background, there's two. There's another one here that we'll have a look at. And apart from that, I've used Grey Nichols, I've used GM, SG, DSC. Probably the only brand that I've not used as of now is SS. Somehow Battlefield नहीं उतना मेरे को वो था। तो I just wanted to have a small video about the kind of bats that I'm using and what are the price points and exactly which scenarios I look for कि कहाँ पे कौन सा बैट यूज़ कर सकते हैं। I am in no way saying that I'm a great batsman. I would rather say I'm very average, hit and miss. But regardless, it's about corporate cricket. Corporate is more about enjoying yourself, while at the same time staying competitive enough that you keep it fun and don't just lose all the time. So I just want to take you through the bats. So the first one that I have, which is probably my most prized possession, it's this KLR one. It is a player edition bat. I recently purchased it. It was an impulse buy, to be very honest. गया था मैं वही 20-25 वाले रेंज में देखने, but I saw this bat. It was a beautiful piece, and वहीं on spot मैंने decide किया, and my wife, who was also there with me, she kind of supported me. She said लेना है ले लो, like it's fine. So I ended up purchasing this grade 1 plus premium willow, English willow, approximately I would say 16 grains, all straight. Very good bat, काफ़ी लाइट हैंड फील। अगर आप इसका स्पेसिफिकेशंस देखोगे तो आई थिंक दिस इज़ 1185 ग्राम्स, बट हाथ में दिस डजंट फील मोर देन से 1080। समटाइम्स यू कैन इवन और लोगों ने जिन्होंने कभी इस पर नेट्स भी यूज़ किया, दिस सेड दैट इट्स ईजिली यूजेबल वन हैंडेड, विच इज़ समथिंग विच यू कैन नॉट प्रॉब्ली डू विद अ heavier bat like a Hardik Pandya edition of SG or SS or whatever, something like that. So a really good bat, but for specific conditions. I would say this is not made for heavy corporate cricket usage, because again, the kind of balls that we are using, those really can damage the bat. In fact, starting में हुआ भी था, I made the mistake कि मैंने नॉक करके इसको तुरंत यूज़ करने चला गया, and I used it on the nets with a लेदर बॉल, एंड साइड में हल्का सा क्रैक आ गया था बिकॉज इट वॉज वेरी सॉफ्ट इंग्लिश विलो। तो आई एम नॉट एग्जैक्टली अ प्रोफेशनल प्लेयर कि मेरी हर बॉल मिडल हो। यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ, आई वुड से एज पे बहुत सारी बॉल्स लगी हैं। सो नाउ दैट इट्स स्लाइटली नॉक्ड इन एंड इट्स यूजेबल ऑन द क्रिकेट पिच, आई हैव बीन प्लेइंग विद इट अ लिटिल बिट। आपको कुछ रील्स में देखा भी होगा दैट आई यूज दिस। सो ग्रेट बैट, बट प्रॉब्ली आई वुड से अ बिट टू प्राइसी, not for everyone. The second one that I have here, this is DSC Condor Petrol. It's a grade 1 bat, not exactly grade 1 plus, but still very powerful, and I would say very good value for money bat. इसका MRP अगर आप देखोगे, I think MRP इसका 40,000 के आसपास दिखाएगा वेबसाइट पे, बट डील वगैरह लगा करके, डिस्काउंट वगैरह करके, I think this costed me around 20-23K, and it has a very clean profile, clean face है, 7 or 8 grains if I remember correctly. थोड़ा bottom heavy है, you can see. Good for hitting, but equally good for if you want to play long, like अगर आप वी में खेलना चाहें, ड्राइव्स खेलना चाहें, equally good. Duckbill profile है. I generally do not prefer duckbill profile bats, but this one is an exception because
इसका भी बैट फील जो है दैट्स रियली आई वुड से रियली क्लीन। फील नहीं होता कि मतलब आप इतना भारी बैट है। दिस इज़ लाइक आई थिंक 1240 या 1250 ग्राम से का है जो लास्ट मैंने नापा था। एंड फील नहीं होता कि इतना भारी है। एंड मोस्ट ऑफ माई आई वुड से अभी रिसेंट टाइम्स में जो भी मेरे मतलब अच्छे इनिंग्स आए हैं, आई वुड से 70% ऑफ देम हैव कम फ्रॉम दिस बैट, बिकॉज दिस इज़ रियली मेड फॉर स्विचिंग गियर्स। आप हिट करना चाहो हिट कर सकते हो, आप चला करके खेलना चाहो आराम से सिंगल डबल, दैट कैन ऑल्सो हैपन। सो रियली आई वुड से एक्सेलेंट परचेज। DSC बैट्स जनरली थोड़े भारी एंड पे होते हैं, मुझे ऐसा फील होता है, थोड़े भारी होते हैं, बट दिस हैज़ रियली वर्क वेल फॉर मी। एंड फाइनली आई हैव दिस लेटेस्ट परचेज। ये मेरे फ्रेंड दिव्यांशु जो हैं, ही वेंट टू मेरठ टू बाय हिज बैट, एंड देयर ही हैज़ अ फ्रेंड हु हैज़ हिज ओन शॉप। सो ये दैट इज़ स्पोर्ट्स zahidsports.com। वहाँ से ये मैंने थोड़ा कस्टमाइज़ करके बनवाया था अपने लिए। सो दिस बैट वॉज एसेंशली जस्ट फॉर आई वुड से जब जाके बल्ला फेंकना हो कि आप शेमलेसली यू कैन जस्ट गो अराउंड एंड हिट। सो इसका अगर आप प्रोफाइल देखोगे, इट्स वेरी थिक एट द बॉटम। काफ़ी परचेज मिलता है, इवन इफ़ यू आर हिटिंग फ्रॉम द बॉटम पार्ट, इट जनरली गेट्स द जॉब डन। इट्स अ कश्मीर विलो, प्रीमियम कश्मीर विलो बैट, वेरी अफोर्डेबल, और इट वॉज आई थिंक 7,000 के आसपास। एंड द थिंग दैट आई लव अबाउट दिस इज़ द हैंडल। सो आई जनरली डू प्ले अ लॉट ऑफ बॉटम हैंडेड शॉट्स। मेरा हाथ कई बार यहाँ होता है व्हेन आई ट्राई टू प्ले ऑन द ऑफ साइड। सो यहाँ अगर थोड़ा थिकनेस होती है तो हाथ पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। दिस वॉज स्पेसिफिकली कस्टमाइज फॉर दैट। पतला हैंडल है, रियली वर्क्स फॉर मी। माइट नॉट वर्क फॉर एवरीवन, बट वर्क्स फॉर मी। और ग्रेन्स वगैरह के मुकाबले मतलब उसमें मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, दिस इज़ नॉट रियली एग्जैक्टली अ टॉप ग्रेड बैट, बट इसकी पावर, आई हैव हिट बॉल्स विद द KLR, आई हैव हिट विद DSC, बट जितना तेज़ इससे बॉल ट्रैवल करती है, and that's mostly because of the bat weight. It's a heavy bat, doesn't feel that much, but it's a heavy bat. The balls really travel lightning fast. So currently I would say this is the one that I'm using the most अभी corporate matches में, especially friendlies वगैरह में जहाँ balls बहुत अच्छी नहीं होती. So I tend to go out and use this as much as possible. So the way that I do it right now is if I'm opening for the first 4 to 5 overs, if I stick around that long, I would try to use the KLR, try to play on the drives jitna ho paye, and then finally when the spinners may come in, or if the medium pacers slightly with lesser pace come in, I try to use this to clear the boundaries. आइए अब इन बैट्स की पिंग चेक कर लेते हैं। सो सबसे पहले KLR1। इसका स्वीट स्पॉट खुल चुका है, बट चूँकि अभी ये पूरी तरह से नॉक नहीं हुआ है, अगर नीचे या ऊपर ज़रा भी लगती है तो इट्स नॉट एग्जैक्टली प्रिपेयर्ड, बट रिगार्डलेस इट्स अ ग्रेट बैट। प्रॉबली आई वुड से नॉट फॉर कॉर्पोरेट क्रिकेट इतना, बिकॉज हम जिस तरह की बॉल्स यूज़ करते हैं दोज आर नॉट एग्जैक्टली रियली गुड फॉर दिस बैट। सॉफ्ट विलो है, ज़रा सा भी अगर इधर उधर लगे ब्रेक करने के चांसेस रहते हैं। Next we'll try out DSC, Condor Petrol. प्रॉपरली खुला हुआ बैट, मैं इसे अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 7 या 8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया। इट्स ग्रेड 1 बैट, नॉट ग्रेड 1+ या प्लेयर एडिशन लाइक KLR1, but regardless I think corporate के लिए this is the sweet spot. It costed around somewhere around 22-23,000, and I would say जिस तरह की balls corporate में यूज़ होती हैं कहीं पे भारी, मतलब you never know, there is no standard quality of balls. अगर आप कोई अच्छी बॉल यूज़ कर रहे हो जैसे APD सुपर टेस्ट, तो अच्छे भी निकलेगी, देन कभी कभी ख़राब भी आ जाती है। तो उस केस में दिस आई वुड से इज़ अ वेरी सेफ बैट, वेरी गुड हैंड फील, एंड स्ट्रोक काफ़ी अच्छा है।
एंड भाई फाइनली आती है ये गदा. दिस इज़ कश्मीर विलो. आई लिटरली बॉट इट जस्ट टू हिट. कई बार ऐसा होता है जब आप फ्रेंडली मैच या कुछ भी खेल रहे हो एंड यू जस्ट वांट टू गो आउट एंड थ्रो योर बैट, या फिर लास्ट में स्लॉक हिटिंग के लिए जा रहे हो. और दिस इज़ बेसिकली जस्ट फॉर दैट एटलीस्ट, बट इट्स अ रियली गुड बैट. अप्रॉक्सीमेटली 1210 ग्राम का है, बट डजेंट फील लाइक इट हाथ में. इट फील्स मोर से अराउंड 1160 बिकॉज कस्टमाइज करके बनवाया था जाहिद स्पोर्ट से. तो एक बार इसका भी बैक पिंग चेक कर लेते हैं. तो इसकी जो हिटिंग है दैट फील्स कम्प्लीटली डिफरेंट. अगर आप देखोगे आवाज़ भी थोड़ी अलग आती है. इसमें कोई ऐसा सच स्पॉट नहीं फील होता जहाँ से आप अगर हिट करो तो ऐसा लगता है कि गलत लग गई है. बिकॉज काफ़ी अगर आप देखोगे काफ़ी वुड है ऊपर से नीचे तक. सो बॉल कैरी करना पक्का है. इट्स अ रियली गुड बैट फॉर आई वुड से अगर आप खाली जा कर के बल्ला फेंकने वाले हो या फिर आपने डिसाइड कर लिया कि आज आपको खाली मारना है. So good bet, especially for the price point. I think I got it for approx 7K and great value for money. Honestly speaking, आज के टाइम में I think this is the bat that I'm using the most as of right now in matches. So that's all for today. I hope you might find this change of pace थोड़ा interesting. If you do hit the like button, subscribe if you're not subscribed. I see a lot of people coming to the videos, reels, and I've been blessed enough कि a lot of people have followed me. So I hope you guys appreciate this form of content as well. And I'll try and do a bit more around if you are looking to get into say creating cricket-based reels या how to get the equipment. सबसे अच्छा यूसेज क्या है, सेटिंग्स क्या हैं, how would you want to go ahead and process and things like that. I'll do that in the later probably part of the month. I'll do some videos around it, but for now I hope you enjoy this little sneak peek into my kit bag, I would say. Thank you. Have a good day.